Yeah, Durgesh, good afternoon, Dr. Vijender speaking from Europedia. How are you? Good afternoon, sir. I'm fine. How are you? Great, great, Durgesh. Durgesh, are we going to a mock for NITI Bombay? Yes, sir. Okay, so may I confirm your gate score is 677, huh? You are OBC category and mechanical engineering student. Yes, sir. Yes. Okay, great. So, Durgesh, as you know, there are three sections in this. One is introduction section, then general awareness section, and general engineering section. So, I think we can proceed with the introduction first. Yes, sir. Okay, so I think we can start with the introduction then. Yes, sir. Uh, Hello. Yeah, yeah. Myself, Mukesh Vikram Yadav. I was born in Gazipur district, which is famous for its opium factory, and was raised in Ghaziabad, which has Hindan Air Force Base. My family background: I have my mother works as a clerk in ESIC hospital, and even after being a working lady, she manages the home very well. My father is no more. He was a very cheerful and honest person and always advised me to be a good person. I have a younger sister too. For my education, I did my schooling from CBSE from my native place. During my school, I bagged first position in Science Procom quiz in Delhi NCR region and also got many medals in Olympiad. Every year, I used to get scholarship from school for good academic performance. I did my graduation from NIT Silchar in Mechanical Engineering Department and completed my BTech in 2018. During my graduation, I was a part of Indian Society for Technical Education, which conducted many quizzes and competitions, and I managed to win two of them. I was also in charge of Spiritual Progress Club, which organized many events, camps, and guest lectures in the college. The main objective of the club was to spread spiritual awareness and to guide young generation towards inculcating good habits and to stay away from bad habits like drugs, unnecessary websites, and other things. We also help students academically. About my internship and project, I did my internship at CSIR CMERI in Durgapur. There, I studied about techniques and devices to measure airflow like venturimeter, rotameter, orifice meter, and anemometer. These devices were calibrated and readings were taken to find out the discharge coefficient. This institute takes up many industrial projects and this takes up many industrial projects and I during my internship I observed how people there would expertly manage the project and deliver them in a stipulated time period. I did my final year BTech project on the topic uh, design of strain gauge based dynamometer. We made a detailed study about the device through various sources and analytically estimated rough dimensions of the devices. Then it was modeled in CATIA V5 software and ANSYS simulations helped us in concluding the dimensions. My role in the project was to collect study material and understand the working of the device and prepare presentations. I also contributed in all other activities. During the project, I learned division of labor and importance of teamwork. I also got some idea about uh, presentations and presentations and thesis making. During my graduation, I studied many subjects, but I found that I was not specialized in any particular domain. I am conversant with technical subjects, but still lack managerial skills. When I got a reasonable score in GATE, my seniors and mentors advised me that for higher education, it would be best to do it from NITI. NITI is a place which grooms managerial skills of a person and develops soft skills and confidence in personality. It helps one to be a complete technocrat, making a person industry ready and ready for job market. It has a strong alumni base, and the branding community helps in a great career ahead. I will be able to learn many things in NITI which I could not learn in college.
As far as my hobbies are concerned, I have a keen interest in art and craft. I love to draw using pencil shading techniques and also won many prizes in art and craft competitions. I also like the experiment. I also like doing experiment in the kitchen, and I like especially making sweets. I'm also very interested in hearing and reading about spirituality, particularly on Vaishnav culture, and practice it. This culture is very old and was existing in southern and eastern India, but now has spread throughout the world by ISKCON, and even now even foreigners are practicing it. For my strength is that I am a disciplined person and do my work wholeheartedly. My weakness is that I tend to scold a person who is not doing work properly, and but I am practicing to be a tolerating person by practice of meditation. Thank you. Okay, Durgesh, I think we can move on to the next section now, Yes, sir. right? So, Durgesh, I will be giving you 3 topics, and you are supposed to speak on 2 of them, right? The 3 topics for you are, the first one is, why can't we be the world players in industry as we are in software? As we are in soft. Right. Second one is FDI in higher education good for India? Good for India. Third one is India's demographic dividend India, India's demographic dividend is underutilized. utilized. Yes, sir. Sir, will I get 1 or 2 minutes for? Okay, let me know the 2 topics on which you will speak. Sir, I would like to speak on second and third topic. Is FDI in higher education good for India? And India's demographic dividend is underutilized. Okay, go ahead with the first one. Your time starts now. Okay, sir. Sir, I would like to speak first on FDI. So, FDI is foreign direct investment. That means companies from abroad can invest in the companies in India, which are like mostly they invest in small scale industries which need money, like and mostly they need money. So we can see that in education system in India we are lacking very much. Like we still need this online education system to be developed in India, and more modern system of education. Like we can see that in Finland they are highly developed in education system. It is a role model for the whole world, and students are there happy, and even from India, from Delhi we have heard that teachers have gone for training to Finland and other parts of the world for education. So if we can see that we have to develop our education system more in India to be more modernized, we should think towards positively towards FDI in higher education, so that students in India can compete with the world outside. So now I would like to speak on second topic. India's demographic dividend is underutilized. We see that India is a very diverse country. So in India we can see that people
are many people are. Sir, I am not prepared for this topic. Okay. So if you want to think, you can take like a few seconds and then you can speak. Yes, sir. Okay. Sir, shall I start? Yes, yes, go ahead. Sir, in India, we can see that India is highly diversified country where we have different languages, different types of dresses, and different types of people, and we can very much direct this towards our the country's development. But if this diversification also has a negative side, like people we can see in the news that people from North India or other parts have a negative view about northeastern states, and this is mentality of some people, not as a general. So if we are not ourselves united, it will be difficult for us to be a developed country. Also, we can see that high amount of corruption leads to uh, to the underutilization of the resources in India. Also, we can see that we are in ancient times, India used to be called golden bird because India was highly developed in the field of science, economics, and many other fields. But now, I feel that since we are just trying to copy Westerners without knowing its effects or side effects, I feel that the resources in India would have been better utilized if we would have think to utilize it in a better manner. Thank you, sir. Okay. So I think we can move on to the next section now. Yes, I give you three topics now, Yes, sir. and you are to talk on two. You are from mechanical engineering, right? Yes, sir. Okay, so I give you the three topics. First topic is factor of safety. Factor of safety. Yeah. Second topic is simplex table. Simplex table. Yeah. Third topic is break-even analysis. Break-even analysis. Okay, sir. Sir, I would like to speak on factor of safety, Okay. and break-even analysis. Okay. Sir, can I take 1 minute to? Yeah, sure.
Sir, shall I start? Yeah, Durgesh. Yes, sir. Sir, my first topic is factor of safety. Sir, we can see that we are living in a real world, and when we study any subject, then we actually study about like ideal applications first. So we must we must think that this ideal situation is not going to work in the real world as it is. Like if we do our calculation in physics or in any technical side, then that should have some tolerance, so that in the real world when there are losses or some different situations are there, like in some place the temperature might be very cold, and there if we do experiment and find the result, in the other places where the temperature is very high, the same result won't be able to give the proper functioning. So we must take this reality into account and therefore prepare for factor of safety. Also, the materials which we design are not homogeneous, 100% homogeneous, or so we must. There are also the materials have many defects inside them, so they which increases concentration factor, and if even a little load is different from what we have already designed, it may fail. So these things are needed to be considered into account. For example, I would like to take example of a bike. If a bike is designed for a 2-person, and if 5 people are going to sit on that, then it will be overloaded. If a lift is designed for like maximum 8 to 10%, and if 12 to 13% are going to step on that, the lift may fail and it may drop down. So for the safety, this accident should not happen, and we have to design the lift for like 15 to 20 people so that it can carry the load. And so this factor of safety needs to be applied everywhere in reality. Sir, my second topic is break-even analysis. So we can see that what is break-even analysis. Break-even analysis is a point when our expenditure is matching with the cost. Our expenditure is matching with the revenue we are getting, and net profit is 0. Sir, here I would like to take the example of like a cab driver who has invested in getting a cab first. Like he has invested by buying a car from his savings. He has also taken loan. His daily maintenance is also there, like petrol and other services are there. And after the service of cab, he gets some revenue. So he must get he must get profit back, because he also has to manage his home. So the point where his revenue matches with his expenditure on the cab, that is a break-even analysis. And for economy to run properly, the companies need to have a profit. So that they can invest more on expanding and research and development, so that the companies, the industries can grow. Thank you, sir. Okay, so I think we can give you feedback now. Yes, sir. दुर्गेश, तो पहले तो यार जो इंट्रोडक्शन है ना, तुम्हारा इंट्रोडक्शन 5 मिनट से ज्यादा हो गया, 5 मिनट 20 सेकंड चला तुम्हारा इंट्रोडक्शन। अच्छा। और उसमें क्या है कि आपने पेरेंट्स के बारे में जो बात बताया है, पेरेंटल आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा है, दैट इज एग्जांपल फॉर अदर्स आल्सो। और लेकिन क्या है कि फ्लो अभी भी दुर्गेश उस लेवल तक नहीं पहुंचा। फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा आपका, एक बेस्ट फ्लो होगा जिसमें ऐसा लगेगा कि आप कुछ सोच के नहीं बोल रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली निकल रहा है वो इंट्रोडक्शन। Yes, sir. बीच में
या सेंटेंस रिपीट करना या सेंटेंस का टूट जाना, दीज थिंग्स विल नॉट बी देयर इन दैट केस। तो आई विल रिक्वेस्ट यू के थोड़ा प्रैक्टिस करो, मतलब यही जो इंट्रोडक्शन आपने बोला है इसको लिखो एक पेज पे और इसकी बहुत बार आप रिहर्सल करो, सो दैट ऐसा लगे कि आपको नेचुरली ये आ रहा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सारा। यस सर। एंड आपको बीच में आपने कुछ लाइनें भूल भी गए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, और 5 मिनट से ऊपर ये नहीं होना चाहिए। बाकी कंटेंट ठीक है, मतलब क्यों निटी आपने कनेक्ट जो किया निटी का वो भी अच्छा लगा मेरे को, दैट वाज आल्सो ओके। कंटेंट में ट्रबल नहीं है, बस ट्रबल जो है वो फ्लो में है, आपको फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। Yes, sir. Sir, actually, I was confused that which part should I take out of this introduction, so that matlab it does not exist, because while practicing I saw that it was exactly 5 minutes. तो अगर थोड़ा भी मतलब जैसे भूल जाते हैं तो वो टाइम बढ़ तो जाता है। प्रोजेक्ट में जो आपने डिटेल में डिस्कशन किया ना उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दो, प्रोजेक्ट की डिटेल को कट शॉर्ट किया जा सकता है, और अननेसेसरी चीजें जो बतानी है, मतलब बहुत अचीवमेंट्स भी नहीं बताने की रिक्वायरमेंट है, तो जहां पे आपको लगता है कि कोई चीज आपने बहुत ज्यादा बता दी उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, डिटेल्स को Yes, sir. रिड्यूस किया जा सकता है। और यहाँ पे मतलब 4:30 तक रखो अपनी इंट्रोडक्शन, सो दैट अगर थोड़ा लंबा भी हो गया तो 5 से ऊपर ना जाए, तो 4.5 मिनट तक रखो इसको, Yes, sir. राइट। Yes, sir. उसके बाद आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये 3 टॉपिक मैंने दिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिंप्लेक्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो फैक्टर Yes, ऑफ sir. सेफ्टी जो होता है ना वो आपका बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए होता है, आप इसको अलग डायरेक्शन में लेंगे, पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो सेफ वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मटेरियल की स्ट्रेंथ निकालते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस व्हिच कैन बी इंड्यूस्ड टिल फेलियर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर मैं डिवाइड कर दूं मटेरियल की स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ को, तो मेरे पास मैक्सिमम सेफ वर्किंग स्ट्रेस निकल जाती है। फिर आप बोल सकते थे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए होता है, एज ना नेम शोज, के हम लोडिंग इतनी ज्यादा ना करें कि उस लिमिट तक पहुंच जाए और बॉडी फेल कर जाए, तो जो फेलियर स्ट्रेस है हम उससे भी कम ही बॉडी की लोडिंग करते हैं, तो वो फैक्टर डिसाइड करता है कि हमने कितनी लोडिंग करनी है, ऐसे वो चीज आपकी कैलकुलेट होती है। एंड Okay. देन या दैट इज द पॉइंट। फिर आप बता सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, 1.5, 2 के आसपास हम रख सकते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है तो सेफ्टी तो बढ़ जाती है लेकिन वेट भी बढ़ जाता है, तो वेट इज ऑल्सो वन कंसिडरेशन, तो वेट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाने से मटेरियल ज्यादा कंज्यूम होता है और वो एक कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो जितना नेसेसरी है उससे ज्यादा भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से आप बता सकते हैं। सिंप्लेक्स टेबल जो है वो एक बेसिकली टेबुलर मेथड है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसके ऊपर बता सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपको इनपुट वेरिएबल्स दिए होते हैं और आपने आउटपुट कुछ निकालनी होती है, तो उसको निकालने का तरीका सिंप्लेक्स टेबल और ग्राफिकल मेथड, 2 मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड जो है वो 2 वेरिएबल तक होता है, सिंप्लेक्स मेथड में वेरिएबल की लिमिट्स नहीं होती है। और फिर आप सिंप्लेक्स टेबल के बारे में बता सकते हैं कि हम उसमें बहुत से वेरिएबल्स को रखते हैं, एंड देन दे आर डिफरेंट कॉलम्स एंड वी कीप ऑन मेकिंग फॉरवर्ड आइटरेशंस, हम बनाते जाते हैं और एक हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन फिर आ जाता है। उसके ऊपर आप सिंप्लेक्स टेबल के ऊपर बोल सकते थे, ग्राफिकल मेथड का कंपैरिजन कर सकते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता सकते थे। ब्रेक इवन पॉइंट इज वो पॉइंट है जहां पे ब्रेक इवन अटेन होता है, मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम आता है। अगर प्रोडक्शन उससे कम हो, सेल उससे कम हो तो लॉस होता है कंपनी को, अगर सेल उससे ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। तो जो प्रोडक्शन या सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ऐसे हम ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन कर सकते थे कि जैसे मैं प्रोडक्शन या सेल उससे ज्यादा बढ़ा दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बता सकते हैं कि ब्रेक इवन पहले जल्दी आता है या लेट आता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी डोमेन में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज की प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्रेक इवन बहुत पहले आ जाए लेकिन प्रॉफिट आपको ज्यादा ना बने, कई बार ऐसा होता है ब्रेक इवन लेट आए लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। ब्रेक इवन 2 प्रोसेसेस को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं आप, कि कौन सी प्रोसेस मैं यूज करूं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू मेरे को जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपैरिजन ऑफ 2 प्रोसेसेस कैन आल्सो बी डन, एंड फॉर वन प्रोसेस आल्सो यू कैन टेल कि कितनी सेल पे मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। ऐसे आप ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बता सकते थे। दीज 3 पॉइंट्स वर रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग डोमेन ओनली। Yes. फाइन दुर्गेश, तो अपने टॉपिक के पास रहना है और बोलते रहना है कि टॉपिक क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते रहना है आपने। Yes, सर एक्चुअली ये मतलब ये सब मतलब अंडरस्टैंड ये पढ़ा तो था, लेकिन वही है कि टाइम पे मैं बोलने के लिए वो मतलब मिस हो जाता है, दिमाग में आता नहीं है। एक्चुअली ये सारी प्रैक्टिस की बात होती है दुर्गेश, जैसे बच्चों Yes, में जैसे मॉक करते जाएंगे, जब मॉक टेस्ट लगाते हैं आपसे प्रैक्टिस होती जाती है, वैसे मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता जाएगा, यू विल कीप ऑन Okay. स्पीकिंग गुड।
यस सर, हाँ फाइन। हाँ जी, यस सर। ओके। अब सकलानी सर, आई थिंक विल गिव फीडबैक। हाँ ध्रुवेश, तो यस सर। कैसा क्या आपको क्या लगता है, कैसा बोला आपने? सर खराब था बहुत। अच्छा, तो मैं फीडबैक देता हूँ आपको थोड़ा सा और, कि आपने पहले जो टॉपिक चूज किया ना, देख लो शुरू में कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता है कि नहीं। जैसे आपने जो सेकंड टॉपिक चूज, थर्ड टॉपिक जो था, मतलब जो आपने सेकंड टॉपिक को कहा, उसको इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड इज हाँ अंडर यूटिलाइज, वो बेसिकली उसके बारे में आपको उसको समझ नहीं पाया आप। बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो आपका डेमोग्राफिक मतलब जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन आपके पास है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो उसका उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये मतलब था उसका। ओके। ठीक है, तो आपने कुछ और ही डायरेक्शन में ले गए, हाई अमाउंट ऑफ करप्शन और कुछ और ही बोला आपने, कुछ और ही आपने उसको इंटरप्रेट कुछ अलग किया। ठीक है, अच्छा पहले मैं फर्स्ट टॉपिक बोलता हूँ जिसमें आपने कहा कि एफडीआई इन हायर एजुकेशन इज गुड फॉर इंडिया। आपने कुछ एग्जांपल दिए पर कोहेरेंट नहीं था आपका। मोस्टली शुरू में आपने बोला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका करेक्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं, पर आपने सिंपली बोला अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ही बात करनी थी तो आपने ये कहना था कि जो आउटसाइड ऑफ द आपकी जो कंट्री है, जब इन्वेस्टमेंट आप ड्रॉ करते हो किसी भी सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी में, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे इकोनॉमी के सेक्टर है वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंडिया हैज आल्सो थॉट अबाउट एफडीआई इन हायर एजुकेशन आल्सो। ठीक है, फिर आप इंडिया की सिचुएशन बता देते हैं थोड़े से कि द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट गुड ओवरऑल। अगर हम बात करें, पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अगर हम हायर एजुकेशन में बोलें जो कि दे आर परफॉर्मिंग, मतलब वो उनका और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और तो उससे बोलते फिर आप आ जाते कि अगर हम क्या करते, मान लिया अगर हम एफडीआई अलाउ करते हैं, मान लिया एजुकेशन सेक्टर में, पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन की बात हो रही है या एलिमेंट्री या लोअर उसमें बात नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो नई जनरेशन है आपकी, वो एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के लिए एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा आपका जो स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल, द बेसिकली इट इज गोइंग टू बी द बेनिफिट द स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेगा, सोचने पे मजबूर करेगा कि जो उनके तरीके हैं पढ़ाने के या मेथोडोलॉजीज हैं वो क्या सही है कि नहीं। ठीक है, और वो क्या करेगा, इट विल ब्रिंग द कंपटीशन इन दैट पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर, तो दैट वे जो है वो ओवरऑल बेनिफिट होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर हमें ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट लगता है, इट सीम्स कि वहां पर एजुकेशन होनी चाहिए, क्या कहते हैं एफडीआई की रिक्वायरमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाए, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर पे जो कि दे आर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली और बहुत ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर अलाउ करते हैं एफडीआई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली क्या ओवरऑल बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स का भी और नई टेक्निक्स भी फॉर्म एंड ऑल दैट। ठीक है, पर जो नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता सकते हैं कि उसका जो जो कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही डोमिनेट करें। फॉर एग्जाम्पल जो इलिट है, जिनके पास पैसा अच्छा है, उन्हीं को वो केटर कर पाए और वही जो है वो स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी केवल उसको बेनिफिट मिले। ठीक है, पर रिक्वायर्ड ये है कि अगर हम प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर तैयार करेंगे, सो दैट वे वी विल बी एबल टू एड्रेस दैट इशू ऑफ, अगर हमारे कुछ नेगेटिव कंसर्न्स हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अप्रोच करना था। तो एफडीआई का थोड़ा सा बोल लिया, हमें क्यों जो एफडीआई जो हायर एजुकेशन में क्यों चाहिए, हायर एजुकेशन में क्या दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत, अगर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, एंड उससे फायदा क्या होगा, अगर नेगेटिव पॉइंट जो हमें लगता है तो वो क्या है, लास्ट में कि कैसे अगर नेगेटिव पॉइंट है तो उसका कुछ को कैसे एड्रेस करना है, वैसे बोल सकते थे। ठीक है, और सोच लेना। हाँ, थर्ड पॉइंट के लिए भी एक बार थोड़ा बताते हैं क्या उसके लिए हो सकता है? उसमें क्या था कि वो क्या है, आप देखो ना, डेमोग्राफी डिवीजन हम बोल रहे हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन तो बहुत है। नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट तो, सर। वो कैन व्हाई कांट इंडिया बी वर्ल्ड प्लेयर इन इंडस्ट्री, बिकॉज इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा था। अच्छा, वाई कोई नहीं, किसी और वीडियो में करो, वाई कांट वी बी द वर्ल्ड प्लेयर इन इंडस्ट्री एज वी आर इन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हमारा जो है वो ट्रेन मैन पावर भी आपका जो शुरू में फोकस ज्यादा रहा, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इवन दो गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया, बट जो एक एजुकेटेड जो स्टेटा था सोसाइटी का, जो लोग टेक्निकली जो आपके टेक्निकल मैन पावर थी, वो एक्सपोज हुई आउटसाइड वर्ल्ड को। ठीक है,
तो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज हुई, तो उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और उन इनिशिएटिव के कारण हम जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो है बहुत आगे गए। ठीक है, बट जो हमारा क्या कहते हैं इंडस्ट्री सेगमेंट में, वो हम शुरू में इतना फोकस नहीं हो रहा, ज्यादातर फोकस जो है इंडस्ट्री में जो था, पर्टिकुलर ट्रेडिशनल सेक्टर था, और उसमें गवर्नमेंट ज्यादा डोमिनेंट थी शुरू में। फिर धीरे धीरे जो है लिबरलाइजेशन हुई, तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हुआ। ठीक है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उसमें इंप्रूवमेंट चल रही है, हमने इन्वेस्टमेंट भी लाई है उसमें, और अभी ला भी रही है गवर्नमेंट। बट उसके बाद जो है पुश मिला है कि ऐसा नहीं है, हमने ऐसा मतलब कांट भी, हम हो सकते हैं इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। फिर आप चले जाओगे उसमें मेक इन इंडिया की प्रोग्राम की तरफ चले जाओगे कि हाउ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिए हैं उस डायरेक्शन में। तो अगर हम उसके ऊपर जो है फोकस करेंगे, मतलब अलग अलग डोमेन्स के ऊपर, तो हम उस एरिया में भी जो है वो अच्छे से पुल कर पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, यस सर। इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे इसमें। और जो सेकंड टॉपिक था आपका इंडिया डेमोग्राफी डिवीजन, उसमें आपने शुरुआत ऐसे करनी थी आपकी कि लार्ज पॉपुलेशन है आपकी, यंग पॉपुलेशन ज्यादा कर है, और बहुत सारी पॉपुलेशन आपकी जो है वो क्या है, अनस्किल्ड भी है, एजुकेटेड भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन भी देनी पड़ेगी उनको, स्किल सेट जो है डेवलप करना पड़ेगा। अगर स्किल सेट डेवलप करोगे तो ऑब्वियसली क्या है, उससे जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, और तो ओवरऑल इकोनॉमी का बेनिफिट होगा, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। और आप और एरिया, जैसे हमने बोला गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत। ठीक है, एजुकेटेड होंगे, स्किल डेवलप होगी, तो आप कंट्रीब्यूट कर, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक डोमेन है उसमें भी आपका मतलब स्टार्टअप इंडिया में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको कोरिलेट करते चले जाओगे। ठीक है, हाँ। तो दुर्गेश ऐसे अप्रोच करना है। तो जैसे अगर टॉपिक समझ नहीं आया शुरू में, तो उसके ऊपर नहीं बोल के दूसरा टॉपिक चूज कर लो, बेटर है, जो कि थोड़ा सा समझ आ रहा है। यस यस। ठीक है, यस सर। यस। हाँ, ओके दुर्गेश, that is Okay, how we have Durgesh, to- then I think you get this clip and from there you get the details, huh? Sir, can I ask one doubt, please? हाँ हाँ बोलो। Sir, actually, I was passed in 2018. हम्म। I passed my college, so I have 2-year gap. So should I try to justify in the introduction? No, you should not even mention this. Reason being कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो नहीं रही वहां पे, तो अननेसेसरी तुम गैप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ना करो अपना, और वो वहां पे कोई जस्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रॉस क्वेश्चनिंग में कोई पूछ ले तो उसका आंसर देना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा ऐसा कुछ, तो यू नीड नॉट टू आंसर दैट। Okay, और Rapid नहीं करना। 2018 भी मेंशन नहीं करूं? 2018 नहीं, ये भी मेंशन मत करो, आप सिंपली बोल दो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, बात खत्म। ओके ओके। ठीक है, Yes, sir. ओके दुर्गेश। थैंक यू सर। ओके।